एक दिन आजा, आऊंगी एक दिन आजा, कहिए अगर अपना पता दे जाऊं, आऊंगी एक दिन आजा, आजा। तो जस्ट टू बिगिन हमने ये ऑडियो जानबूझ के सिलेक्ट किया था. This was from Basera and Ajau and Asha ji came, she sang and she conquered. We all are her fans और यंगस्टर से लेके जनरेशन दर जनरेशन आशा जी के फैंस बढ़ते जा रहे हैं. So let's not waste any more time and over to Ankush Adha to start the evening. Okay, thank you very much, Himanshu. Actually, this subject is very, very big and huge. Asha Pancham is a subject that cannot be finished in half an hour, 1 hour, 2 hours, or 1 day. It really needs many days. फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे that we will try to give you the best and make this evening dedicated to Asha ji. Now, first of all, that is what actually I wanted to say, कि एक झूम से होगा नहीं, ये झूम 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 रातनी झूम ऐसा होना चाहिए. The Pancham as a music director and Asha ji as a lead singer, they had no really thing to do title songs. एक फिल्म आई थी which was called Halchal. Halchal was coincidentally the first film of Zinat Aman also. उसमें एक भी गाना नहीं था except for a title song of Halchal, which was sung by Asha ji and Pancham. There are a lot of traces in this particular music which were used in Shan in background. My friends who are absolutely encyclopedias and they are doing day in and out the study on this particular thing will understand what I am talking about. इसमें शान के बहुत सारे traces है. So Himanshu, let's listen to this. Yes. Yes. पता दे जाऊं, आऊंगी एक दिन आजा, आजा। So you could feel that Shan background somewhere in this particular song. Surprisingly, when Pancham started his career, it was Chote Nawab. In Chote Nawab, there was not a single song of Asha ji. The second movie, which was Bhoot Bangla, also had no Asha ji's voice at all. Bhoot Bangla also, there was nothing by Asha ji. The third movie, Tisra Kaun, had 2 songs. Later on, of course, Tisri Manzil had all the Asha ji songs.
But before Tisri Manzil, there was a movie called Pati Patni. Sanjay Kumar was the hero. And in this particular movie, there was a song which I can confirmly say for the first time was on a rhythm pattern called Bossa Nova. Bossa Nova is a Brazilian rhythm pattern, and the meaning of Bossa Nova itself is new trend or new sound, and it is also its origin from Africa. Now, in this particular song, Asha ji has sung fantastic. I have heard her interview where she was saying कि when I went to Lata Didi saying that ये क्या पंचम कर रहा है, कौन सा rhythm है, ये पता नहीं चल रहा है. This is a 8/8 rhythm, and in this particular rhythm अभी आज तक कभी गाना नहीं हुआ है. तो लता जी से कर लो, जो कर रहा है पंचम करने दो. So it is actually so this kind of a rhythm, and of course pancham has used these sticks also, which are called cloth. So let's listen to this particular song, and don't forget to salute Manohari Da, who has played a fantastic, super saxophone in this. So, Yes. मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए ये वफाएं बहुत हो चुकी ये वफाएं बहुत हो चुकी आज कोई जफा कीजिए मुझे मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए चंद ऐसी भी होती है बातें हाँ जो लोग कहते नहीं चंद ऐसी भी आती है रातें कि दूर रहते नहीं आज ऐसी ही एक रात है साथ गुजरे दुआ कीजिए अरे मार डालेगा दर्द जिगर कोई इसकी दवा कीजिए so once again after Tisri Manzil, Baharon Ke Sapne had no Asha ji song, but in 70s, the film called The Train, first time we heard Pancham and Asha ji combination, a duet song, which was actually a club song. Now in this particular song, there are so many good things. The thing number one is Pancham has sung it with a gargling voice. Now this particular gargling voice, nobody in Hindi film industry had ever heard. Nobody could think that ऐसा भी आवाज हो सकता है. So many music directors commented very badly on this, और उन्हीं के लड़के बाद में यही आवाज में गाने लगे. So Pancham started a new trend of gargling voice. In this particular sound or this song, आशा जी का जो voice है, nobody can, no other singer in India or abroad can touch that. I can challenge on this. The way she has done, directly she is going to Kalitin of the next octave is impossible. And only
only Asha ji can sing this particular song. So let's listen to this Meri Ja Maine Kaha from The Train. मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा, द्विदी 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 द्विदी। मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा। मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, मेरी जा मैंने कहा, मेरी जा तूने सुना, दिल ने दिल से क्या कहा। One small piece of information for all the music lovers. A German company called Polygram came to India for music recording, which was called as Polydor. Now for Polydor, the first ever record cut, which was actually for The Train. The D Train record number is 0000. I don't know how many zeros, but number 1. So it's the first ever record of Polydor and super hit LP. Okay, we come to the next point, which was Karwa. Now in Karwa, naturally there were 2 songs of Lata Didi, which of course we know. Dil Bar Dil Se Pyare and one Goriya Kahan Tera De. But all other songs were Asha ji. Now Asha ji has sung for Aruna Rani as well as Asha Parekh also. But in this particular movie, there was one song which was sung for Aruna Rani, which was Ab Jo Mile Hai To Bahon Ko Bahon Mein. Now this song was also done in Bengali as Jabo Ke Jabo Na, which was the first super hit Bengali puja song of Pancham. Now in this particular song, once again, Pancham has used Bossa Nova. Also listen very carefully that there is a lingering guitar piece which is actually going continuously behind, and that is actually called as a loop. Today when what we talk about loop is the concept of Pancham those days. So it starts with hitting the ditting, the ditting, the ditting, which continues on the backside continuously. Gopi ji has done this guitar link, which is continuously moving in the background. I have tried to club the Bengali and Hindi. Let's listen Asha ji's takat, Asha ji's power, to make you feel it is not the heroine but Aruna Irani who is singing this. So, Himanshu, let's listen to this.
हाय रे हाय रे, अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो हाय रे हाय रे हाय रे साजना। So that was Bengali Hindi combination of same song. Of course, the Hindi was in 1971, Bengali was in 1977. Anyway, we are coming to now to a very important year in RD's life, that is 1972, movie called Apna Desh. Now in Apna Desh, RD Burman for the first time put his name, he did not sing for the first time, he had sung already for The Train. But the name on the record was by Odeon, who was the company. On the record, the song was, the singers were Pancham and Asha Bhosle. It was not R.D. Burman and Asha Bhosle. It was Pancham and Pancham. R.D. used his name Pancham for only once. That was for this particular song, which is, of course, you know, Duniya Mein Logon Ko. But before that, I want to say somebody just at 2 o'clock in the afternoon sent me one beautiful interview of Asha ji about this particular song, which I would like to narrate here. Once somebody was asking Asha ji about what is the comparison between Lata ji and Asha ji. So Pancham said that Lata ji is the Bradman of cricket and you are the Sobers. So Bradman was the century maker, Sobers aake laga do helicopter shot. So that is how we can differentiate between Asha ji and Lata ji. Both are great, no doubt about it. Now coming back to this particular song, the way Pancham has created this particular song is marvelous. In between there is his own breathing sound. Now the whole idea of breathing sound was, as you all know, Pancham was a mouth organ player. So if you remove, he said, Duniya mein, that ha 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 was actually would have been a mouth organ. Pa, 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 pa. Remove the mouth organ and you hear his breathing. And this is how actually he created this song. Now this time, every time I say a smart music director, I say intelligent music director, today I want to say Pancham was a scientist of music. The way he has created the voices, the way he has created sounds is unbelievable in this world. So let's listen. Now I have coupled, I am not going to tell you, but mark the antara. It's something different. So let's listen to this Duniya Mein Logon Ko.
दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। So I tried to club two songs, one from Karwa and one from Apna Desh. I hope you all like, because the antras are almost the same. If you like, please, you can write in the chat. 71 mein there was one more dhamaka. Some new sounds, something new came up in this world called music. And the person who was responsible for all this was Pancham, and with him was Ashaji. There was also one more element which tried to get involved in this particular thing. I'm talking about Har Ram Hare Krishna. People heard totally a new sound in the form of Dam Maro Dam. Now in Dam Maro Dam, Ashaji at her best. The sound recording, I challenge that even today, any music director, whether it is Jatin Lalit, Rahman or anybody, cannot match this sound quality what Pancham created in 1971 with just 4 mics in those days in the industry. You can hear absolutely perfectly the bass guitar, all percussions, everything correctly. And I think the bass guitar was played by Gorakh ji, parallel ji ke jo chote bhai the, Gorakh ji has played, and the main lead guitar was of course played by Bhupi ji. This made everybody go crazy those days, Dam Maro Dam. But there was also one more song which was called, saying I love you, which was with Usha ji. Now again, Usha ji is singing at a very low octave, and Asha ji singing at a high octave. It's a duel between two particular octaves, because Asha ji had to go very high. So I thought to give real respect to Asha ji, we must listen to that song also. So I have again clubbed Dam Maro Dam and I Love You together. I hope you all like it. Let's listen, Himanshu. दम
dum da ba da ba da ba da 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 ba dum da ba da ba da ba da ba da da खुशी का जब तक है दम पे दम, अरे कश पे कश लगाते जाओ, गलियों में घूमो सड़कों पे झूमो, दुनिया की खूब करो सैर, गलियों में घूमो सड़कों पे झूमो, दुनिया की खूब करो सैर। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। Everybody Rama Hare Krishna Hare Krishna, that's the way I want it, real sweet. Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama. So, Asha ji, no comparison, no singer in this country or anywhere in the world who can match her way, her style. एक छोटी सी बात बोल के then I will hand over my mic to Himanshu. I don't want to disgrace anybody, but when Asha ji sings, you आपके नजर के सामने सिर्फ हीरोइन आती है, not the Asha ji. Whereas बाकी सिंगर के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि when they sing, we only feel that that singer is singing. But Asha ji has that ability to go down to the singer level or the heroine level and give her voice. Over to Himanshu. थैंक यू वेरी मच अंकुश दादा, बहुत बढ़िया I'll come गाने। back again यस afterwards. यस, बहुत बढ़िया गाने सिलेक्ट किए, और जैसे कि अंकुश दादा ने कहा, ही विल कम बैक विथ मोर सॉन्ग्स ऑफ आशा जी, एंड बहुत ज़बरदस्त गाने और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अंकुश दादा ने दी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू प्रेजेंट फ्यू ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। अब आशा एंड आरडी सॉन्ग सिलेक्ट करना और उसमें से फेवरेट निकालने से वेरी डिफिकल्ट था। जैसे अंकुश दादा ने भी कहा कि ये एक आध घंटे की या एक जूम में करने ऐसी बात नहीं है, तो भी मैंने कोशिश की है। इस बार हमने थोड़ा सा लिबर्टी लिया। हमेशा हम लोग 20 सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं, आज हमने 25 सॉन्ग सिलेक्ट किए, क्योंकि आशा आरडी हो और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन योरसेल्फ। तो आशा आरडी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, इस कॉम्बिनेशन के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल कॉम्बिनेशन एंड अ परफेक्ट मैच आई वुड से। एक तरफ पंचम था जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते थे, कुछ ना कुछ नया करते थे, इनोवेट करते थे, बहुत सारा म्यूजिक में, मेलोडी में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो उन्हें भी कोई एक ऐसी वॉइस चाहिए थी हु इज रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ चैलेंज, जो नया कुछ कर सके, एक्सेप्ट इट एंड डिलीवर इट द वे ही हैड कंसेप्चुअलाइज्ड। एंड आशा जी वाज द परफेक्ट सिंगर, जो हर एक नया अंदाज अपने गले में उतारती थी, कोई भी चैलेंज जो उसे पूरे ताकत से पेश करती थी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक देयर कॉम्बिनेशन वर्क ब्रिलियंटली, और इतना वर्सेटाइल काम इन दोनों ने किया है। इसी में से कुछ अलग अलग जॉनर के गाने मैंने सिलेक्ट किए। Kishore Da is known as the most versatile male playback singer, undoubtedly. I would say Asha ji was the most and is most versatile female singer we had ever seen. और एक थोड़ा एडवांटेज था आशा जी को, बीइंग अ फीमेल प्लेबैक सिंगर, उन्हें कुछ ऐसे गाने भी मिले विच अ मेल प्लेबैक सिंगर विल नॉट गेट। फॉर एग्जाम्पल मुजरा सॉन्ग्स हो, सी क्लासिकल वेस्टर्न तो मेल फीमेल दोनों को मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलर सॉन्ग्स विच ओनली अ फीमेल प्लेबैक सिंगर विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग। फॉर एग्जाम्पल मुजरा सॉन्ग्स हो, या सेंशुअस सॉन्ग्स, या सीड्यूसिंग सॉन्ग्स, बहुत सारे वैम्प के गाने, या कैबरे सॉन्ग्स। तो ये एक एडवांटेज था, और आशा जी ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इस हर जॉनर को पेश किया। शी हैज लेफ्ट अ मार्क ऑन ईच ऑफ द जॉनर दैट शी sang, be it for पंचम दा फॉर एनी अदर कंपोजर। तो शुरुआत करता हूँ मैं। पहला गाना मैंने जो सिलेक्ट किया है दैट इज फ्रॉम द फिल्म शालीमार। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक वर्ल्ड रेनोन्ड बुक थी 1001 एल्बम्स यू मस्ट लिसन बिफोर यू डाई करके। इसमें दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन एल्बम को इनकॉर्पोरेट किया गया था, ऐसे एल्बम्स जो आपको सुनने ही चाहिए जिंदगी में।
और शालीमार was the only album and is till date the only album from Hindi film music or Bollywood आप कह सकते हैं which made to that book. It was the only album which is considered as the album you should listen before you die. 1001 global album में से एक, और बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक था इस फिल्म का. द सॉन्ग दैट आई हैव सिलेक्टेड, मेरा प्यार शालीमार, सभी को पता है. फॉर मी इसमें आशा जी का जो वॉइस है बहुत ही सूदिंग है, और इसमें मैंने अंतरा सिलेक्ट किया है खास करके फॉर द इफेक्ट ऑफ आशा जीज वॉइस एंड वायलेंस. मैं हमेशा जब ये गाना सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं समुद्र के किनारे पे बैठा हूँ और लहरें आ रही हैं, बिकॉज द वायलेंस आर अरेंज्ड इन दैट वे. आशा जी के वॉइस को फॉलो करते करते एक एक वायलिन आती है, आगे बढ़ती है, और सीशोर पे जैसे वेव्स ब्लास्ट होती है उसी तरह का कुछ इफेक्ट पंचमदा ने किया है. मैं बताऊंगा नहीं, आप इसे सुनना, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम शालीमार, मेरा प्यार शालीमार. बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट. और जैसा मेडे ने भी कहा, स्टीरियो हेडफोन पे आप सुनते हैं वायलिन. मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, हेडफोन्स जैसा अभी भी मैंने पहना है, हेडफोन्स वाज अ न्यू थिंग. तो ये गाने जब सुनते थे तो जो वायलिन एक कान से दूसरे कान में ट्रैवल करती थी, बहुत मजा आता था. यूनिक इसकी रिकॉर्डिंग, और ये 70s में ये सब काम करके रखा है पंचमदा ने. अगला गाना फिल्म मनोरंजन से. देखिए किशोर कुमार, राजेश खन्ना हमेशा कहते हैं ना प्लेबैक सिंगर एंड एक्टर, बट आशा जी के बारे में मुझे हमेशा लगता है कि आशा जी एंड जीनत अमान वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर. इतने बढ़िया गाने खास करके पंचमदा के साथ इस जोड़ी के हैं. टू सिलेक्ट फ्यू ऑफ देम इज क्रिमिनल आई वुड से. मतलब इतने बहुत अच्छे गाने हैं आशा जी और जीनत जी के पंचमदा के कंपोजिशन में, इट्स वेरी टफ. मैंने ये गाना सिलेक्ट किया फिल्म मनोरंजन से, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है. इस गाने में आशा जी का वॉइस सुनना आपको जीनत अमन ही दिखाई देगी. इतना परफेक्ट टोन, एक्सप्रेशंस, हर कोई चीज में. एंड अगेन मैंने अंतरा सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे इसका अंतरा बहुत अच्छा लगता है. अंकुश दादा ने ही इसका थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मुझसे शेयर किया था जब हम ये गाना सुनते थे. इसका अंतरा देखिए, पहले छोटे छोटे पीस है, जैसे कि वायलिन पे स्टैकेटोस कहते हैं, छोटे पीस जो वायलिन के बजते हैं. तो अंतरे की शुरुआत में हर एक छोटे छोटे फ्रेज हैं. उसके बाद जो अंतरे का पार्ट है उसमें लंबे फ्रेज गाए हैं आशा जी ने, जस्ट लाइक द लॉन्ग नोट्स ऑन वायलिन, जिसे लेगाटोस भी कहते हैं. तो अंतरे में इस तरह का वायलिन्स का सेक्शन का ही वोकल्स में थियरी यूज करना या उस तरह का कंपोज करना बहुत बढ़िया. तो लेट्स लिसन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम मनोरंजन. लगन
तो बहुत ही प्यारा गीत मनोरंजन से। Again, another song that I'm going to play is also of आशा जी and जीनत कॉम्बिनेशन। थोड़ा अलग गाना, ये फिल्म अब्दुल्ला से है और इस गाने में अगेन आशा जी, जैसे मैंने कहा कि जीनत अमान ही सामने आती है जब आशा जी गाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई और गा रहा है। इट फील्स लाइक जीनत हरसेल्फ इज सिंगिंग द सॉन्ग। भीगा बदन जलने लगा, इस गाने में बेस गिटार इतनी बढ़िया। और इसके रिदम के बारे में, इंस्ट्रूमेंट तो मैं नहीं जानता। इफ मैडी या अंकुश कैन हेल्प मी, दे कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। ये गाना जब शुरू होता है सिर्फ गिटार है और एक रिदम इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। आई डोंट नो इफ इट वाज ऑन द बाया ऑफ द तबला, डग्गा जिसे कहते हैं, उस पे बजाया है या छोटे जो डिमड़ी रहती है उस पे बजाया है। आई एम नॉट श्योर। मे बी मैडी और अंकुश कैन हेल्प मी एंड पुट इट इन द चैट बॉक्स। बट सिर्फ वही एक इंस्ट्रूमेंट का साउंड और गिटार है। और फिर बेस गिटार आती है, इतना बढ़िया पीस है बेस गिटार का। आई डिड नॉट पॉइंट इट आउट, आप लोग खुद ही सुन के पहचान लेंगे, इतना बढ़िया हाईलाइट है वो इस गाने का। और उसके बाद फुल रिदम सेक्शन शुरू होता है जो मेनली तबले पे है। बट बिफोर द बेस गिटार एक बहुत अच्छा साउंड, आई डोंट नो इफ इट इज द बाया और द दिमड़ी, स्पेसिफिक रिदम का टेका बजता है। एंड आफ्टर द बेस गिटार फुल रिदम सेक्शन एंड आशा जी अगेन एट द बेस्ट फॉर जीनत अमान। सो लेट्स लिसन दिस वन फ्रॉम अब्दुल्ला। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा, जैसे अरमान कोई, जैसे मेहमान कोई दिल में मचलने लगा। भीगा बदन जलने लगा, मौसम बदलने लगा, जैसे अरमान कोई, जैसे मेहमान कोई दिल में मचलने लगा। भीगा बदन जलने लगा। थैंक यू अंकुश दादा एंड थैंक यू मैडी फॉर द इनपुट्स। सो दिस वाज दिमड़ी, जो मैं कह रहा था, इतना खूबसूरत और बेस गिटार का पूरा रिदम। बट अंटिल दैट सिर्फ दिमड़ी पे एंड ढोलक पे बहुत बढ़िया ऑर्केस्ट्रेशन इसका। सो नेक्स्ट सॉन्ग अगेन जीनत आशा। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है एंड देयर आर सो मेनी सॉन्ग जो इनके लिए बना है, तो आई कैन नॉट रेजिस्ट। तो मैंने और एक गाना सिलेक्ट किया एंड दिस सॉन्ग बाय द वे, इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता था मैं। दिस इज फ्रॉम अली बाबा 40 शोर, खतूबा, अरेबिक स्टाइल का गाना। और आशा जी ने जो अरेबिक स्टाइल में गाया है, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर। आई डोंट नो, ये 80s की फिल्म है। So it's not that Asha ji was very young. She had debuted in the industry way back. She was, I mean, probably in her early or mid 40s by that time. But जो गाया है उन्होंने अरेबिक साउंड में, एंड अगेन इसका ऑर्केस्ट्रेशन मिनिमल, बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है, बट जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, वॉयलेंस हो, खंजरी हो, रिदम हो, बहुत बढ़िया। एंड हियर आई वुड रियली लाइक मैडी इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। मैंने मैडी से इस गाने के बारे में डिस्कस किया था एंड देयर वाज सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दैट ही हैड मेड अबाउट द ओपनिंग ऑफ दिस सॉन्ग, कैसे रिदम स्टार्ट होता है। मैडी, आई विल जस्ट अनम्यूट यू फ्रॉम माइंड एंड यू कैन जस्ट शेयर योर व्यूज। गिव मी अ मिनट। Yes. Yeah, Himanshu, thank you. I hope I'm audible to all. आवाज आ रहा है सबको? Yes. एक्चुअली Yes, हिमांशु, yes, ये गाना जितनी बार भी आप लोग सुनते हो, कोई भी गाना एक्चुअली पंचम का आप जितनी बार भी सुनते हो, तो वो एवरी सॉन्ग इज लाइक अ पर्ल, जिसके अंदर के मोती खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक निकलते ही जाते हैं मोती। आप जितने बार हाथ डालो और एक मोती निकल जाता है। तो ये कुछ पंचम दा की एक खासियत है गानों के बारे में। तो जब मुझे
हिमांशु तूने कहा था कि वो ये गाने के बारे में कुछ कोई बात करते, तो आई अगेन वेंट बैक एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द सॉन्ग। बहुत सारी चीजें फिर से हाथ लग गई। तो एक चीज जो मुझे ध्यान में आई थी, आई जस्ट टेक 1 मिनट एंड वी कैन गो टू द सॉन्ग। एक चीज जो ध्यान में आई थी कि इंसान की जिंदगी जो होती है वो इंसान के करियर में कितना बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो आशा दीदी का जो स्टार्ट था वो नॉर्मली सेकंड लीड हीरोइंस और कैबरे नंबर, जो लता दीदी पहले गाने को ना बोलने की, इस तरह के गानों से शुरू हुई थी। उससे क्या हुआ था कि आशा ताई वाज ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉन्ग्स। एक फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए थी एक प्लेबैक सिंगर के लिए वो उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। इसलिए जब हम जिसे कहते हैं आशा ताई वाज वेरी वर्सेटाइल, आशा ताई वाज एक्चुअली फ्लेक्सिबल। वो किसी भी तरह के गाने गा सकती थी। और ये अरेबिक वर्ब, व्हाट यू आर सेइंग जस्ट नाउ, कि अरेबिक वर्ब में गाना इट्स नॉट वेरी इजी। ये जो एक एक छोटी छोटी चीजें, ये एक्चुअली हमारे जो नाट्य संगीत है वहां की चीजें है, बट उसको किस तरह उन्होंने जेल कर दिया था टू गिव दैट अरेबिक वर्ब, दैट इज वन। सेकंड, कमिंग टू पंचम, इसमें खंजीरी का यूज है स्टार्टिंग को, एज वी ऑल नो, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। बिकॉज क्या होता है, आमतौर पे रिदम सोलो जो होता है वो एक्चुअली ढोलक, ढोल, ताशा, व्हाटएवर यू यूज, इसमें खंजीरी का सोलो है। द बिगिनिंग ऑफ दैट सॉन्ग, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ, यस यस यस। तो बिगिनिंग ऑफ दैट सॉन्ग है, खंजीरी का सोलो है। तो खंजीरी अगर आपने देखी होगी, खंजीरी अलग अलग किस्म की होती है। हाथ में एक हैंड खंजीरी भी होती है, एक वो जो गोल खंजीरी होती है वो भी होती है। तो उसमें द वे पंचम दा यूज्ड इट। अच्छा, इतना ही नहीं, आप आगे जाते हो ये खंजीरी सोलो, बिकॉज पंचम ने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को जितना इंपॉर्टेंस दिया, आज हम लोग इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम खुद जानते हैं जो पंचम दा के फैंस है। उसका रीजन ये था कि हम लोग इंडस्ट्री में कहते हैं छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को पंचम ने माइक दे दिया। दैट्स व्हाट वी नॉर्मली कॉल, कि वरना उनको माइक था नहीं, हमेशा ऐसे बाजू में बैठे रहने के, उनको माइक दे दिया। अमृता का रेसो रेसो आ गया, जो भी, इसने खंजीरी को माइक दिया हुआ, यू कैन मेक। फिर इसी में इंट्रो में अगर आप सुनोगे वॉयलिन को डिले है। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट कंसीडरिंग दैट टाइम, क्योंकि ये डिले जो है ये मिक्सिंग यानी मिक्सर के ऊपर दिया गया, लास्ट के 3 नोट्स को डिले है खाली। और वॉयलिन्स ये एक साथ बैठने की, दे आर नॉट मूवेबल थिंग्स, दे आर स्ट्रिंग सेक्शन। तो 3 नोट्स को जो लास्ट को डिले दिया था, ये अभी बहुत ईजी है कंप्यूटर में, उस वक्त वो मिक्सिंग कंट्रोल पे करना पड़ने का, दैट इज व्हाट ही हैज डन। फिर खंजीरी का एक एक जो गाना खतूबा, उसमें एक एक जो गाने की स्टार्ट होती है पहले खंजीरी से ही शुरू होती है वो। फिर आहिस्ता से जो अरेबिक रिदम है, जेम्बे, अफ्रीकन काइंड ऑफ रिदम जो आता है, वो जेम्बे का एंट्री होता है। उसके बाद वो मैरेकस का एंट्री होता है उसके अंदर। इफ यू एक एक इंस्ट्रूमेंट ज्वाइन होते जाता है। और आशा ताई का सिंगिंग से गोइंग टुवर्ड्स कोरस इज सच अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। अगर आप सुनोगे जो ट्रांजिट होता है फ्रॉम खतूबा, खतूबा, इसी में एक लाइन कोरस के लेके फिर आशा ताई गोज इनटू द अरेबिक वर्ब। खतूबा वो जो करती है वो बाद में लेती है, बट कोरस से एक्चुअली जैसे हम लोग बचपन में खेल खेलने के खो, तो ऐसा जैसे उन्होंने कोरस को खो दे दिया है एंड कोरस टेक्स इट अप फ्रॉम देयर, ये चेंज ओवर सुनाई देता है। एंड लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू, जो अभी इसमें भी जो अभी मनोरंजन का गाना यूज किया था, प्ले किया था, बेस गिटार। ये नॉर्मली हर म्यूजिक डायरेक्टर, आज भी हम लोग बेस को बेस कहते हैं इसलिए कि वो लो नोट्स बजाता है। पंचम दा यूज टू चैलेंज एवरीथिंग। जो भी चीज अगर पंचम दा को आपने कह दी कि ये ऐसे होता है, तो पंचम दा कहने का क्यों होता है भाई, लेट्स ट्राई समथिंग, उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने के। बेस गिटार खतुआ में सुनिएगा किस तरह हाई नोट्स का यूज किया उन्होंने बेस में। तो पिकअप्स वगैरह भी जो है बेस के नोट पे है, काफी बार उन्होंने किया है। ये गाने में आपको भी ध्यान में आएगा, जहाँ पे बेस एकदम हाई नोट से फिर नीचे आते हैं। हाई नोट इज वेरी ब्रिलियंट यूज इन दिस सॉन्ग खतुआ। गाना सुनते हिमांशु। थैंक यू मेडी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ऑब्जर्वेशन एंड इनपुट्स। तो अभी मैं गाना प्ले करता हूँ। अंकुश, यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके, वन सेक। Play the song. There is also importance of reso, which I will try to play along. Okay, I'll play the song now. खतूबा 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 खतूबा
सो दैट वाज खतूबा एंड गाना सुन के फिर से मैं मैडी को कहूँगा थैंक यू अंकुश दादा, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशंस और उसी तरह इस गाने में प्रोग्रेशन होता है हर चीज का। सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम खूबसूरत और कहते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग में आधा एक्टिंग होता है आधी सिंगिंग होती है। किशोर कुमार साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो एक्टर पहला थे, इसके लिए उनको गाने में इमोट करना या एक्सप्रेस करना आसान जाता था क्योंकि ही वाज एक्टिंग सिंगर। तो गाने में एक्टिंग करना परफॉर्म करना जरूरी होता है, स्पेशली आप फिल्म प्लेबैक में जब गाना गाते हो या प्लेबैक देते हो। तो आशा जी का ये जो गाना है फिल्म खूबसूरत का, इट्स एन एग्जाम्पल अबाउट प्लेबैक सिंगिंग। मतलब आवाज में बिना एक्टिंग के, आप कैमरा के सामने नहीं है, कैमरा के पीछे हो, आपका चेहरा नहीं दिखने वाला है, कोई इनेक्ट करने वाला है, पर वो सारे एक्सप्रेशन सारे हाव भाव आप अपनी आवाज में से कैसे पेश कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे कि जो फिल्म में काम या पिक्चर जिस पे होने वाला है वो एक्ट्रेस के लिए कितना आसान हो जाता है। इफ समबडी सिंगिंग फॉर यू लाइक दिस विद ऑल द एक्सप्रेशंस, तो आपके लिए एक्टिंग भी आसान हो जाती है। तो दिस सॉन्ग फॉर मी फ्रॉम खूबसूरत इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। अलग अलग एक्सप्रेशंस, अलग अलग टोन, इसमें हंसना भी है, सब कुछ है। दिस इज सुन 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 दीदी फ्रॉम खूबसूरत। लेट्स लिसन। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। तेरी अंजू जरा पा 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 स्वा। अच्छे घर का लड़का है पर थकलाता है। मुंह पर दाग के चक्के और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका बड़े कभी तो रमी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं हम। आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आया बस बस। तो ये कमाल है आशा जी का कि गाने में के थ्रू एक्टिंग कैसे परफॉर्म करना, इट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल। जैसे मैं बिगिनिंग में कहा था कि एक फीमेल सिंगर होने के नाते उन्हें अलग अलग सिचुएशंस मिली जो एक मेल सिंगर को नहीं मिल सकती फिल्म में। जैसे कि वैम्प सॉन्ग्स, कैबरे सॉन्ग्स, सीड्यूसिंग सॉन्ग्स। तो एक ऐसे जॉनर का गाना मैं पेश कर रहा हूँ फिल्म लव स्टोरी से। गाने की सिचुएशन को सिर्फ अपने टोन से, आवाज की टोन से एंड एक्सप्रेशन से कैसे क्रिएट किया जा सकता है,
आशा जी ने बहुत से ऐसे गाने गाए, दिस इज वन ऑफ देम। जस्ट बाय द वे शी सिंग्स एंड द टोन ऑफ हर सॉन्ग्स पूरे गाने का मूड बन जाता है। और ऐसे गानों में पंचम दा ने जो गिटार का काम किया है बहुत जबरदस्त। इसमें भी देखना इंट्रो सिर्फ और सिर्फ गिटार पे पूरा चल रहा है। एंड मुखड़ा गाने को जब गाना पिकअप आता है, यानी गाना टेम्पो पकड़ता है, वो पिकअप भी एज अ पंचम दा हमेशा वी कॉल हिम रिदम किंग एंड रिदम के बादशाह थे। कोई भी रिदम इंस्ट्रूमेंट पे आ सकता था, पर पूरा का पूरा पिकअप भी गिटार पे ही है। इसको जरूर सुनना, ये बहुत बढ़िया गिटार पीस है। एंड ऑफ कोर्स आशा जी, ये अरुणा ईरानी जी के लिए उन्होंने गाया हुआ गाना था फ्रॉम लव स्टोरी। लेट्स लिसन टू दिस। सॉरी, मेरा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। बिफोर लव स्टोरी आई एम प्लेइंग बर्निंग ट्रेन। दिस इज अगेन अमेजिंग वर्क ऑफ पंचम दा एंड आशा जी। मैं तो कहता हूँ दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सॉन्ग। वेस्टर्न और क्लासिकल का ऐसा कॉम्बिनेशन इन कंपोजिशन करना आज भी शायद ही कोई ऐसा फ्यूजन करता है। ये पंचम दा ने 80s में किया था। एंड कितना परफेक्ट है ये कि आशा जी ने इसको गाया है, बिकॉज शी ऑल्सो वॉज ग्रेट एट क्लासिकल एज वेल एज वेस्टर्न। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न ही गाने गाती थी वो। ये एक परफेक्ट मैच है बर्निंग ट्रेन का गाना, विच रिप्रेजेंट्स द कोलैबोरेशन ऑफ आशा जी एंड पंचम। कितना बढ़िया इनका ये जुड़ी थी। और इस गाने को सुनते वेस्टर्न क्लासिकल इतना इजीली शिफ्ट होता है गाना। पंचम दा ने पता नहीं क्या सोच के उस टाइम पे ये गाना बनाया होगा। इतना सिंपल तरीके से 2 नोट्स में गाना वेस्टर्न से क्लासिकल पे जाता है एंड कम बैक्स टू द क्लासिकल पार्ट। एंड आशा जी ने भी इतना बढ़िया गाया है दोनों फॉर्म फ्रॉम दिस सॉन्ग। सो लेट्स लिसन फर्स्ट टू बर्निंग ट्रेन एंड देन विल लिसन टू द सॉन्ग व्हिच आई वाज डिस्कसिंग अबाउट लव स्टोरी। La 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 मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे। मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे। इसीलिए रहते हैं दोनों खोए हुए। ला 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 ला। मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे। ला 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 ला। तेरे बिना जिएगा माने ना, तेरे बिना जिएगा माने ना। लगी अगन ये कैसी है जाने ना। बलमा सजना हो, तेरे बिना जिएगा माने ना। ला 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 ला। मेरी नजर है तुझ पे, तेरी नजर है मुझ पे। तो देखा इतना इजीली वेस्टर्न से क्लासिकल एंड बैक टू वेस्टर्न ये गाना जाता है, द वे ही कंपोज। और आशा जी ने इतना बढ़िया इसको एग्जीक्यूट किया है। सो नाउ विल कम टू द लव स्टोरी सॉन्ग व्हिच आई वाज डिस्कसिंग। एज आई सेड, सिर्फ अपने गायकी से कैसे माहौल बनाती आशा जी, एंड जो गिटार की मैं बात कर रहा था, लेट्स लिसन टू दिस वन फ्रॉम लव स्टोरी। क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। ओ ना, डर के तुम और हसीन लगते हो जी। क्या गज़ब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। डर के तुम
मतलब सिर्फ आवाज से पूरे गाने की सिचुएशन क्लियर हो जाती है, इतना जबरदस्त सिंगिंग क्वालिटी आशा जी की। सो जैसे मैंने कहा बहुत से जॉनर, इसका मतलब ये नहीं कि आशा जी ने क्लासिकल नहीं गाए, पंचमदा ने बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल स्टाइल के गाने भी आशा जी से गवाए और दे हैव बिकम इमॉर्टल सॉन्ग्स। ऐसे कुछ दो गाने मैं यहाँ पे पेश करूंगा। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम फिल्म नरम गरम। इस गाने में आशा जी की वॉइस आप सुनना, और आप देखिए मैं ये जो गाने मैंने जो सिलेक्ट किए वो लेट 70s और 80s के गाने, मोस्टली 80s के गाने हैं, वेयर आशा जी इज ऑलरेडी 40 प्लस और मिड 40s। बट वो कहते हैं ना कि एक अच्छी क्वालिटी की वाइन जो होती है वो जैसे जैसे मैच्योर होती है उसका क्वालिटी उतनी बढ़ती जाती है। सेम वे आशा जी आज भी, उनकी आवाज में वो ताकत है, वो करिश्मा है। तो ये भी 80s के गाने हैं, इसमें इस क्लासिकल सॉन्ग में आशा जी के साउंड सुनना, इतना बढ़िया आलाप और इतनी बढ़िया हरकत ली है उन्होंने। एंड द सेकंड थिंग टू नोटिस इन दिस सॉन्ग इज द तबला। बहुत ब्रिलियंट अरेंजमेंट है मारुति राव जी का, ब्यूटीफुल तबला अरेंजमेंट। दिस इज फ्रॉम नरम गरम। मेरे अंगना आए रे, मेरे अंगना आए रे, घनश्याम आए रे, मेरे अंगना आए रे, घनश्याम आए रे, मैंने सारे होश गवाए, मैंने सारे होश गवाए, मेरे अंगना आए रे, घनश्याम आए रे। बहुत ही खूबसूरत गाना। एंड यस जय हो मारुति काका, ब्रिलियंट तबले का जो अरेंजमेंट है बहुत ही बेहतरीन। सो अगेन अनदर सॉन्ग, थोड़ा क्लासिकल स्टाइल बट दिस इज मोर ऑफ अ गजल। तो ये एक जॉनर है। आशा जी ने एवरीबॉडी नोज अबाउट उमराव जान खयाम साहब के साथ जो काम किया, लेकिन पंचमदा के साथ भी काफी गजल स्टाइल के सॉन्ग्स हुए हैं आशा जी के। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द फिल्म सनी। अगेन क्लासिकल स्टाइल का गाना, एंड अगेन दिस इज 80s एंड लिसन टू हर वॉइस, मार्वलस। कभी छड़ जाए हम सफर ही तो है, कभी छड़ जाए हम सफर ही तो है, कब बदल जाए एक नजर ही तो है, जानो दिल जिस पे, जानो दिल जिस पे फिदा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं, और क्या अहद वफा होते हैं। ये अमरजीत की फिल्म थी, अमरजीत ने प्रोड्यूस की थी। अमरजीत सेम हु आल्सो वाज डायरेक्टर ऑफ हम दोनों, देवानंद साहब की फिल्म, एंड ही यूज्ड टू असिस्ट विजयानंद अर्लियर। ये फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट राज खोसला साहब ने की थी, एंड आनंद बख्शिश रिटन द लिरिक्स। और आई हैड द प्रिविलेज टू मीट हिज सन राकेश बख्शी, एंड एक कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया कि सनी के जो गाने थे थोड़े उस टाइम पे जो म्यूजिक चल रहा था उससे अलग थे सनी के गाने, काफी गजल स्टाइल के, क्लासिकल स्टाइल के गाने थे इसमें। एंड द बेस्ट पार्ट वाज बख्शी साहब के डायरी में नोटेशन से ऑल द ट्यून्स वर मेड बिफोर द लिरिक्स वर रिटन।
हर सिचुएशन के लिए अलग अलग क्लासिकल स्टाइल की धुनें पंचमदा ने बनाई थी और इतनी बेहतर कि ऑल द ट्यून्स, द फर्स्ट ट्यून ही प्रेजेंटेड टू राज खोसला एंड ही सिलेक्टेड इट। हर हर गाने की जो फर्स्ट ट्यून है वही ट्यून सिलेक्ट हुई। इतना बढ़िया कंपोजिशन पंचमदा ने किया था। ग्रेट मैन। तो आगे बढ़ते हैं। अगेन कमिंग टू सेंशियस सॉन्ग, और ये गाना ना हो तो आशा अर्ली इवनिंग पूरी हो ही नहीं सकती। फिल्म सागर से अगेन जस्ट द वॉइस ऑफ आशा जी, और पूरा गाने का मूड, पूरा गाने का माहौल सेट हो जाता है। एंड यहाँ पे भी गिटार, तबला एंड सिम्बल्स, सिर्फ ये जो मेन इंस्ट्रूमेंट यही है गाने में, इस पे पूरा गाना सजा है पंचमदा ने। क्या खूबसूरत यूज किया है तबले का, गिटार का और सिम्बल्स का। एंड अगेन आशा जी ऑफ कोर्स पूरे गाने का माहौल जो है, जो सिचुएशन, जो मूड है, वो पूरा आशा जी कैप्चर करती है। तो विल लिसन टू दिस ब्रिलियंट वन फ्रॉम सागर। हर जॉनर को आशा जी ने इतना खूबसूरती से निभाया है, जस्ट लाइक दिस वन। अगेन अनदर गजल स्टाइल, आई विल नॉट से गजल बट यस गजल स्टाइल सॉन्ग, फिल्म परिंदा में। एंड दिस वाज लेट 80s, 1989 1990 के करीब ये फिल्म आई थी। एंड यहाँ पे आशा जी का एक मिनट, अंकुश दादा वांटेड टू ऐड समथिंग ओवर हियर वन से। Yes, Ankush Dada. This is not ghazal type, but it is a ghazal. Okay. Let us put it firmly that it is a ghazal. Okay. And this is something very odd that ghazal का एक typical instruments होते हैं, सितार है या तबला है, all those. Panchamda always wanted to do something different, so he has used a trumpet. It is not actually a trumpet; it's a flugelhorn or a French horn, which he has used. आज तक मैंने ये गाने के बाद में कभी किसी का इतना डेयरिंग नहीं देखा कि गजल में somebody is using flugelhorn or a trumpet, and that's all I wanted to add. This is Pancham. This is Pancham. Thank you. Thank you, Ankush Dada. And as rightly said, this is a ghazal. So let's put it that way. और orchestration के बारे में ये मैंने सिर्फ मुखला सिलेक्ट किया, पर इस गाने में संतूर, फ्लुगलहॉर्न और मादल भी इतना खूबसूरत, मतलब मादल है ना गजल, थोड़ा सा ऑड अगर मैं बात करूँ तो लगेगा, बट व्हेन यू लिसन टू इट, इट इज सो ब्यूटिफुली गोज विद द गजल। सो लेट्स लिसन। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, 1918 and 90 की फिल्म थी, एंड लिसन टू आशा जी's वॉइस, एक मैच्योर्ड वॉइस, एंड इसे कहते हैं ना फुल बॉडीड स्कॉच जैसे रहती है, यू नो, नाइस वे। आशा जी का वॉइस को सुनिए, ब्रिलियंट composition and brilliant singing. प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी,
beautiful song from Parinder. And now I'm going back to Asha Zinat. यस मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ये. एंड जैसे मैंने कहा इतने सारे बढ़िया गाने दिए पंचम दा ने इस जोड़ी को कि इट्स डिफिकल्ट टू कंटिन्यू विद वेरी फ्यू सॉन्ग्स. अब जो गाना मैंने सिलेक्ट किया फिल्म पुकार का है. अगेन सेंशुअस काइंड ऑफ सॉन्ग. और जैसे मैंने कहा ऐसे गानों में गिटार का जो यूज किया है पंचम दा ने इंट्रोज में इतना खूबसूरत है. ऑल ऑफ दिस सॉन्ग्स इस पर्टिकुलर सॉन्ग में 12 स्ट्रिंग गिटार यूज की है और इसका इफेक्ट सुनिए आप क्या बढ़िया लगता है. एंड आई नीड नॉट से अगेन एंड अगेन आशा जी की आवाज एंड उनकी गायकी की स्टाइल सुनिए. इट्स एब्सोल्युटली लाइक जीनत इज सिंगिंग विद ऑल द एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग. लेट्स लिसन दिस वन फ्रॉम पुकार. मैं तेरे लिए तू मेरे लिए आओ ना. मैं तेरे लिए तू मेरे लिए मैं तेरे लिए तू मेरे लिए तुझे कई दिन क्यों जाने दे बिना प्यार के ये बता. मैं तेरे लिए तू मेरे लिए मैं तेरे लिए तू मेरे लिए तुझे कई दिन क्यों जाने दे बिना प्यार के ये बता. Two more songs before I welcome Ankush at the back. The next song is from Arjun. इस फिल्म में ये जो गाना था इसमें टेंशन है, थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा थ्रिल है. तो गाने में इस कंपोजिशन में भी पंचम दा ने वो लाया था. इसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है पूरा इट क्रिएट्स द काइंड ऑफ टेंशन रिक्वायर्ड इन दैट सॉन्ग सिचुएशन. फ्लूट का बहुत ही जबरदस्त यूज किया था पंचम दा ने. इट ऑलमोस्ट फॉलोज वर्ड टू वर्ड आशा जी जो गा रही हैं उसको इसको सुनेगा. बट व्हाट आई लाइक ये गाने का जो टेंशन या टेम्पो था पंचम दा ने जो मुखड़ा कंपोज किया था पल पल धड़कन बढ़ती जाए गाना जो है. तो इसका जो मुखड़े का फर्स्ट पार्ट है वो जो था वो कुछ ऐसा था कि धड़कन हर पल बढ़ती जाए चुप building the tempo, building the tension ta ra ra ra. And the second part जो था मुखड़ा का वो नॉर्मल था तारारिरी दारारिरी दादारी दारारारा. तो सेकंड पार्ट एकदम नॉर्मल. लेकिन जो फर्स्ट पार्ट था इट वाज ओनली अबाउट बिल्डिंग द टेंशन, बिल्डिंग द थ्रिल इन द सॉन्ग. और आशा जी ने भी गाया है उसी तरह और पूरा ऑर्केस्ट्रेशन भी वो टेंशन को बरकरार रखता है. सो लेट्स लिसन दिस वन फ्रॉम अर्जुन. And the last song from my end, after which Ankush Sadhu will come. This song is again from Burning Train. एक मुजरा song है ये, which was not picturized. It's not there in the film. It's only on the record. I don't know fit नहीं हुआ क्या हुआ. It was omitted from the film. And इसमें sound
जो भी इंस्ट्रूमेंट्स क्लासिकल स्टाइल के बजे, टेरिफिक साउंड है। आशा जी ने बहुत बढ़िया गाया है। इसमें घुंघरू का यूज किया है एंड आई सेलेक्टेड दिस सॉन्ग एज माय लास्ट सॉन्ग डेलिबरेटली so that I can hand it over to Ankush Dada because he was one of the player who played the ghungroos in this song, and it's our privilege. So I'll play the song first, and then Ankush Dada, you will share some memories about this song with us, because we all would like to know how it was recording with Zamane Mein Kaise, and and then you can continue with your songs. So I'll first play this beautiful song from Burning Train. That was the last song from my end. As I mentioned, इसमें जो घुंघरू बजे हैं, one of the set of घुंघरूs was played by Ankush Dada himself, and he's here with me. So Ankush Dada, I'll request you to share few things about this song, and I hope everybody enjoyed the songs that I played. Over to Ankush Dada. Okay, this particular song was the first time when I met Pancham in Film Center, and there were 4 tablas actually in this song, but kya synchronization dekhiye. I remember Maruti Rao, Bhavani Shankar, Abhyankar and Dada Joshi, they were playing tabla, all 4 together. बीच में पंचम आके कुछ बताता था, and he used to play, he was a left hander, so उल्टा जाके side से he used to play. There was also tabla tarang. Abhyankar ji was playing tabla tarang. There was a beautiful tabla tarang. Pancham wanted घुंघरू, prominent घुंघरू, so एक beat पे था, एक off beat था. So as a newcomer I had to play beat, and वो odds जो भी था, वो there was I don't remember the name, I think Nakwa or somebody was there who was playing that odd घुंघरू in that. Sarod, sitar, all combinations, beautiful composition, and hats off. I will never forget this particular song in my life. So that's all about this particular song. Now we come to Asha ji again on a different plateau. In 73, Pancham created another wonder. He made once again a voice over voice. पहले तो voice over voice किया था क्या जानू सजन में, when Lata ji was done, but it was only a alap. Now this time Pancham tried something different and very dangerous actually, which was from a film called Kala Sona. Kala Sona mein Asha ji is singing 2 parts. Now the best part is, I think Maddie and other people will agree to this. Ek sa mein hai, ek pa mein hai. So it is basically the 5th note combination what he has used. So Asha ji's 2 voices are in different particular pitch, and it is done so beautifully. You never come to know that these are 2 tracks which are joined together in such a beautiful way by Asha ji. Ek high pitch mein hai, ek low pitch mein, and the way it has been done. Of course, he created this magic again many times later on. Katra Katra and all this Choti Si Kahani, all these songs, they were there. But this was first of all. The best part is it was picturized on 2 heroines at a time. So producer का पैसा भी बचाया उन्होंने कि
एक ही सिंगर से 2 हीरोइन के लिए गाना बनाया. So that was another thing. So look at this recording technique, the way Pancham has done, I think something like 40 years back, the way he has done it. I'm sure we can call him as a music scientist from today onwards. So let's listen to this particular great track of Kala Sona. कोई आया भी दे, कोई गया भी दे, कोई आया भी दे, कोई गया जाने भी दे. Very difficult antra also. This was not a standard typical antra, because I personally feel, देखिए ऐसा है, I'm sorry but जो बिल्डिंग पेंट करता है उसको भी पेंटर कहते हैं और हुसैन को भी पेंटर कहते हैं. So there are music directors, but this fellow was a different music director than the others. He created something. He ऐसे बिल्डिंग को पेंट नहीं लगाया, उसने खुद का एक क्रिएट किया है, उसका एक खुद का नाम बनाया उसने. एंड आशा जी वाज ऑलवेज विथ हिम टू फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ न्यू थिंग्स व्हाट पंचम वांटेड टू डू. एक स्टोरी याद आई, पहले के जमाने में जब शादी फिक्स होती थी तो लड़की देखने आते थे घर में. तो लड़के का बाप लड़की को बोलता, उसको चाय वाय पिला, तो शी यूज्ड टू कम एंड वो चाय दे देती थी. तो उसको बोलते थे भाई ये पेपर लो और पढ़ के दिखाओ. देयर वर टू एस्पेक्ट्स. वन वाज दिस इज कॉल्ड वधु परीक्षा. देखना चाहते थे कि उसको पढ़ाई लिखाई हुए है कि नहीं, पढ़ सकते है कि नहीं. न्यूज़पेपर दिया उसको, इंग्लिश या मराठी या हिंदी या गुजराती व्हाटएवर इट इज. बट सेकंड आइडिया वाज that they also wanted to check इसको चश्मा है कि नहीं, otherwise बिना चश्मे के आई है तो she will not be able to read. So इस तरह से चलता था. बाद में उसको बोलते थे गाना सुनाओ, तो वो गाना शुरू करती थी, कहाँ अंतरा कहाँ, कुछ भी हो रहा था. This was सिर्फ घबराहट होती थी. वो लड़की की जो घबराहट है, this is under tension, under pressure. People forget on what note I have started and where am I going. Exactly this is the point what Pancham has caught. एक पिक्चर थी कारवां, जिसमें एक गाने में 3 स्केल चेंज होते हैं. बिकॉज जो हीरोइन है उसके पीछे गुंडे लगे हैं. शी गोज टू एक वो ड्रामा चल रहा है, वहां पे गई है एंड वो कपड़ा बदल के स्टेज पे आ जाती है. बहुत घबराई है, उसने कभी स्टेज पे गई नहीं है, बहुत घबराई हुई है वो. एंड शी इज वेरी मच अफ्रेड.
तो उसको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या गा रही है, कहाँ गा रही है, कौन से स्केल में गा रही है. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सप्रेस्ड इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग. देयर आर 3 scales in which this song goes. आपको समझ में आएगा. I'll just try to show the scales also. तो उसका कंसेप्ट ध्यान में रख के now you look at this song, it sounds different. दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी. दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी, कैसी फंसी, रो न आवे हंसी, पापे बचा लो दसी. So every time, I hope you enjoyed this song. This was too good. Unless we hear to Bengali of Pancham, Pancham khatam nahi ho sakta hai. Pancham ko samajhna hai, so we have to listen to Bengali puja songs of Pancham. As people who are new to this program, let me just simply explain. During Durga Puja, every music director in Calcutta comes out with his own private songs, and एक record बन जाती है, long play या EP और 4 गाने या 8 गाने. So हेमंत कुमार या सलील चौधरी या SD Burman, everybody up to Bappi Lahiri, and everybody has been doing this. Pancham really did a lot of work on puja songs.
अब बहुत सारे पूजा सॉन्ग्स बनाए. There are hundreds of puja songs with Asha Bhosle ji, and some of them are super hit, simply super hit, and people from Bengal think that Asha Bhosle is actually a Bengali. The way uske pronunciation unke jo hai is too good, and the way she sings. So ऐसे एक सुपर हिट गाना आपको अभी सुनाने वाला हूँ, which is actually a Bengali song. उसके बाद में वो हिंदी में भी आ गया है. इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है which is called as cuica, which is again a Brazilian instrument, which is also called as a monkey drum. तो वो उसमें कुछ नहीं, वो बुगु 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 डिगु डुगु डुगु ऐसा ही आवाज करता है और कुछ नहीं कर रहा है. Now no music director will have daring to use this kind of sounds in his music. This is only for the carnival. But पंचम का हर एक गाना कार्निवल है. So the way he has used it, I will show you where this particular cuica has been played. एक ही cuica है जो फ्रैंको जी के साथ में है. फ्रैंको जी ने बजाया है इसको. So let's listen to this Macher Kata. মাছের কাটা কোপার কাটা মাছের কাটা কোপার কাটা কাটা অনেক রকম ফুলের কাটার চেয়েও জ্বালায় পিরিত কাটার যখন মাছের কাটা কোপার কাটা মাছের কাটা কোপার কাটা কাটা অনেক রকম ফুলের কাটার চেয়েও জ্বালায় পিরিত কাটার যখন মাছের কাটা কোপার কাটা বুঝলেন 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 কি কথাটা কাঠ পোকা শ্যামা পোকা কাঠ পোকা শ্যামা পোকা পোকা নানান জাতি এত পোকার মধ্যে শুধু জোনাকি দেয় বাতি কাঠ পোকা শ্যামা পোকা কাঠ পোকা শ্যামা পোকা পোকা নানান জাতি এত পোকার মধ্যে শুধু জোনাকি দেয় বাতি কাঠ পোকা শ্যামা পোকা বুঝলেন 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 কি কথাটা So for so many years I was thinking ये मुंह से निकला है आवाज, but it is actually an instrument called cuica from Brazil. पंचम ने और आशा जी ने मिलके बहुत सारे बंगाली गाने बनाए, पूजा सॉन्ग्स बनाए. But one song is super hit in Bengal, which is called Jugal Gan, which is actually a duet of Pancham Asha, which has become a memorable song. Why memorable? Because again, Pancham has sung at his best. Asha ji is just superb in this particular song. Music arrangement is superb. अगर आप म्यूजिक सिस्टम पे गाना सुनोगे तो you'll go mad with the kind of sound and the frequency controls what Pancham has done. At the same time, there is also, this is the basic song on which Basera, जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही हो, उसका ये बेसिक सॉन्ग है, ओरिजिनल सॉन्ग है. बट moods are different, totally different. But let's listen to this जुगल गान फिरे एशो, because पहले पंचम ने फिरे एलाम बनाया था, पहले पंचम ने फिरे एशो बनाया था, then he made फिरे एलाम. So let's see this, or let's hear this फिरे एलाम.
पंचम was known as westernized music director, और जो ज्यादा वेस्टर्न यूज करता है, बट पंचम ने जो क्लासिकल में काम किया है, वेरी फ्यू पीपल कैन रियली एक्नॉलेज दैट इन म्यूजिक इंडस्ट्री, बट जिनको समझ रहा है, बिकॉज हिज सॉन्ग्स वेर ऑल कैमोफ्लेज, तो आपको समझेगा नहीं कि ये गाना क्लासिकल है कि क्या है. आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर सॉन्ग which is based on Rag Nand. I was talking to my friend in Calcutta about this particular song, and Nilamshu. He explained me that this is based on Rag Nand. Pancham was absolutely fan of Madan Mohan. Madan Mohan का एक गाना जो है, तू जहाँ जहाँ चलेगा, from मेरा सा है, is also on Nand. So दोनों गाने एक ही राग पे है, बट कहीं पे उनका एक दूसरे के साथ संबंध लगता नहीं, बट बोथ आर ऑन द सेम राग, बिकॉज पंचम ऑलवेज वांटेड टू गिव ट्रिब्यूट टू मदन मोहन. हिज सेकंड पर्सन और म्यूजिक डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम हिज ओन फादर was also Salil Chaudhary. There is something called, in classical music, there is something called Sanchari. Now, what is Sanchari? I'll just explain in shortly. It's actually एक अंतरा गाने का totally within the same notes, but totally in a different particular way you represent the same song. It's actually संचार हो रहा है. So you are trying to within the same notes, but maybe in the fifth note you are trying to come out with a different kind of concept of the same song. So that is called Sanchari in music. It's a Dhrupat ka pure classical ki concept hai ye. And Salilda has used it in O Sajana Barkha Bahar Aayi also is another song where Pancham used to always tell his friend, and bhai ye suno ye gana, this is what is great song. उसी तरह से पंचम ने गाना बनाया था बंगाली में, जेते दाओ. Now in Jete Dao also the second antra, I have purposely put two antras. The first antra you listen is a standard antra. Second antra, छोटा सा हल्का सा scale change होके the totally the उसका अंतरे का जो notes है वो change हो जाते, and this is what is beauty of Pancham. Again, the way he comes back to the original. Let's listen to Jete Dao. जीते दामा देखो ना, जीते दामा देखो ना, कबे की आमी बोलेছি মনে রেখো না, जीते दामा देखो ना, কিছু বলবে কি না না না, পিছুড়ে কোনা, যেতে দাও আমার কোনা. তুমি ভরে নিও বসে সুর থেকে সুরে, নয় চলে যাব আমি শুধু দূর থেকে দূরে, এই তাসেরই ঘর বেঁধে তুমি ভেঙে দিও না, যেতে দাও আমার দেখো না. কাচেরই ঝাড় বাতি নিভে সময় হলে, প্রেম যে মোহের আলো জ্বালায় শুধু জ্বলে তাই, কাচেরই ঝাড় বাতি নিভে সময় হলে,
তা আর খুঁড়িয়ে দেখো না যেতে দাও আমায় দেখো না। So this was Sanchari used by Pancham. Pancham and Asha. Pancham could create classical. Asha ji was also, of course, a trained singer, and she could easily sing all those classical compositions of Pancham. One more Bengali composition of Pancham, which is another gem of Bengali songs. This is now based on Mallar or Miyaki Mallar. Miyaki Mallar is actually Darbari plus Mallar. So it is based on Mallar. Now in this song, Ronu Mujumdar ji has played the flute. And when I was talking to Ronu ji during Pancham Magic Show, he said, actually it is my duet with Asha ji. Flute and Asha ji is the duet. So let's listen to this Bashi Suneki, and hats off to Ronu ji also. Asha ji ka sawal hi nahi. Let's hear. বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বলো গো সখী কি করি উপায়, বলো গো সখী কি করি বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনে কি। सारे निसा सा ग म प सा ग म प सारे निसा বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায়, বাঁশি শুনে কি। Wow. Hats off to Asha ji, Pancham for creating the song, Asha ji for singing, and also Ronu Mujumdar ji for fantastic flute in this particular song. We are coming to the last song, but I'm sure this is the height of combination of Pancham and Asha ji. The song is again from Khoobsurat. It's not a song, it's a bandish made by Pancham and superbly rendered or sung by Asha ji. बीच में अशोक कुमार जी का भी वॉइस है, and again this is based on Rag Bihal. The way Pancham has created, the way it has been executed, the way it has been sung, and the way it has been picturized. So when I last time I said there are 4 parts of music, so all 4 parts are coming together and you only create a memorable song, visually, audibly, and by everything. Dil mein reh jata hai, and we all love this song. So let's listen to this last song of this evening, Piya Bauri, so from Khoobsurat. Good, fabulous. Ni sa ni sa ni sa ni da pa ma re sa
धिकता ता टिकता ता धिकता निरतत नंदन बन छुम छननन तछुम तछुम तत्तिगति सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुरंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंद्रा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी दार दार पिया फूलों की चादर बुनी, फूलों की चादर रंगों की झालर बुनी। ओ दार दार पिया फूलों की चादर बुनी, फूलों की चादर रंगों की झालर बुनी। वही बावरी हुई बावरी बावरी, हाँ हाँ पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। पी कहाँ बेनी मारे बामद पिया बावरी पिया बावरी पिया बावरी। So Thank thank you you. very much, This was my Ankush Dada. small tribute to Pancham and Asha ji. Happy birthday, Asha ji, once again. I hope you all liked this particular session and keep on supporting us. We will give you more and more. Over to Himanshu now. Thank you, Ankush Dada. Again, beautiful song selections and Bengali songs. Always Panchamda ke jo hai wo, these are special songs. And thank you for giving such a wonderful explanation and information about these songs. So I hope everybody has enjoyed today's evening. And as Ankush Dada said, we will keep bringing more and more such interesting evenings of full of Panchamda's music. So wait for more. अक्टूबर इज कमिंग एंड अक्टूबर में सचिन दा की जयंती और पुण्यतिथि दोनों है. So we are planning something special on HD Burman. So we will soon announce it on our Facebook and WhatsApp. So keep watching and keep supporting us. Thank you everybody. Good night and